Hello students, we'll continue with exercise 17b, which was based on cones from Frank. We'll start with question number 9. In the previous video we did till question number 8 and question number 13. The question 9 says the total surface area of a cone of slant height 25, slant height is 25, the total surface area is 600 pi centimeter square. Find the radius. What is total surface area? Total surface area formula is pi r L plus r. In the question it is given that take pi as 3.14. Okay, take pi as 3.14, but here you don't need to take pi in the first part. Why? Because total surface area is given 600 pi, तो वो pi already cancel हो जाएगा. 600 pi equals pi r, L is 25, so 25 plus r. Okay, this pi will get cancelled. 600 equals 25 r plus r square, so this is r square plus 25 r minus 600 equals 0. Okay, now when you solve this quadratic equation, okay, I leave that on you. Solve this quadratic equation. Solve this quadratic equation. The factors will be 40 into 15. Okay, 40 into 15. So when you you will get the factors as r plus 40 and r minus 15 equals 0. When you solve this, you split the middle term, take these two as factors. Then r will be minus 40 or r will be plus 15. So definitely this is the answer. Okay, r will be 15. Now this r will be useful. The first part was to find the radius. Now second part, we have to find the volume. So before finding volume, we should know the height. So L square is equals to h square plus r square. Correct. L पता है, r पता है, तो इससे h मिल जाएगा. ठीक है. And then volume का formula use करो and take pi as 3.14. Use the formula and find the volume. Pause the video and complete the sum. Tenth sum. You can pause the video and complete this sum first. 10th sum. The radius and height of a cone are in the ratio 7:14. Radius and height are in the ratio 7:24. I'm sorry. Radius and height are in the ratio 7:24. That means let the radius be 7x and the height be 24x. Find the radius and the slant height if the volume of the cone is 154. So volume is already given as 154 centimeter cube. If volume is given, we'll use the formula for volume. Formula for volume is pi r square h upon 3. Pi को बोला है कि 22/7 लो. So we'll take it. 154 equals 22/7 into r. R square means 7x into 7x into height is 24x upon 3. Okay, 7 will get cancelled. 3 1s are 3 8s are. X into x into x will give you x cube. Okay, and these numbers 22, 7, 8 will come in the denominator, and 8. Okay, now 22 7s are 154.
ओके, सो ये 722 154 से कैंसिल हो जाएगा. व्हाट विल रिमेन? 1/8 इज एक्स क्यूब. व्हेन यू टेक द क्यूब रूट ऑफ 1/8, इसका क्यूब रूट लोगे 1/8 का, तो यू विल गेट x एज 1/2. क्या मिला? x 1/2. If x is 1/2, then we can find radius and height. Okay, we can find the radius and the height easily. So radius will be 7x. 7x मतलब 7/7x मतलब 7 into 1/2, that is 3.5. Okay, and height is 24x, that is 24 into 1/2, 12. Okay, but this is the height. We have to find the slant height. Okay, so slant height is L square equals h square plus r square. So L square is h square, means 12 square, plus r square is 3.5 square. So 144 plus 3 4s are 12, 12.5. Okay, when you add this, you will get 156.25 L square. Find the square root of this number. You can find it like this. You can make it 156.25 upon 100. So 15625 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दो. ठीक है, स्क्वायर रूट किसी 5 के मल्टीपल का ही होगा. ओके, ऐसे भी कर सकते हो. लाइक 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000. ओके, द नंबर इज ग्रेटर देन 100. तो 105 ट्राई करो, 115 ट्राई करो, 125 ट्राई करो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा इसमें से. ठीक है, when you do that you will get the answer as 125. 125 का स्क्वायर होता है 15625. ओके, सो ये मिलेगा 125 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट इज 10. सो दिस विल बी 12.5 सेंटीमीटर्स. दैट इज योर स्लांट हाइट. सो दो चीज़ें फाइंड करनी थी. यू हैड टू फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट, एंड वी हैव डन दैट. कंप्लीट द सम. Next question. Question 11. A conical cavity मतलब होल ड्रिल करना. Conical cavity of radius 3.5 centimeter and height 12 centimeter is drilled in a cylinder. मतलब एक सिलेंडर है. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट इजी है, सेकेंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. ओके, इससे सम आज तक आए नहीं एग्जाम में, बट एक सम तो करना चाहिए डिफिकल्ट. ठीक है, तो एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक कॉनिकल कैविटी ड्रिल किया, मतलब इस सिलेंडर में होल किया है इन द शेप ऑफ अ कोन. एक कोन के शेप का होल किया है. कैन यू इमेजिन दिस? ऐसा एक ड्रिल किया है कोन. ठीक है, ये सॉलिड कोन है, सॉलिड सिलेंडर है, पूरा भरा हुआ है, बट यहाँ से उसमें होल कर दिया, इतना पार्ट होल करके बाहर निकाल दिया. ठीक है, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ रेडियस 3.5. सो ये जो कोन है उसका रेडियस 3.5 है एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, एंड द सिलेंडर हैज़ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर. ओके, what do we have to find? We have to find the volume of the remaining solid. मतलब इस सिलेंडर में से जब ये कैविटी निकाल दिया तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका वॉल्यूम बताओ. सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड? Just think for a minute. It will be nothing but the volume of cylinder
माइनस द वॉल्यूम ऑफ कोन. एम आई करेक्ट? सी, इस सिलेंडर में से कोन को निकाल दो, कैविटी निकाल दो, तो जो बचा हुआ है दैट इज रिमेनिंग सॉलिड. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3. सी, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों फिगर्स आए हैं, सिलेंडर भी आया है, कोन भी आया है. ओके, सो मेनी टाइम्स सम्स कम्स विच विल इन्वॉल्व मल्टीपल फिगर्स. ओके, नाउ यू हैव टू टेक, यू कैन टेक पाई कॉमन ईयर, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए कैलकुलेशन. आर, सिलेंडर का रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर, सो दैट इज 7 इंटू 7 इंटू हाइट सिलेंडर की 20 है, माइनस यहाँ पे रेडियस इज 3.5 इंटू 3.5 एंड हाइट इज 12 अपॉन 3. करेक्ट? 3 1 जा 3 4 जा, पाई इज 22 अपॉन 7. मल्टीप्लाई दिस, 7 7 are 49, 49 into 2 is 980 minus 3.5 into 3.5 into 4. This will give you 49. When you subtract this, you will get 931 into 22 upon 7. Okay, cancel this. 7 1s are 7 1s are 23, 7 3s are 3s are, so 133 into 22, you will get 2926 centimeter cube. This is the volume of the remaining solid. Volume of the remaining solid. So this was the volume of the remaining solid. Now they have asked us to find the surface area of the remaining solid. Surface area of the remaining solid, which is the tricky part. Surface area मतलब just imagine करो, surface area मतलब जो चीज़ बाहर exposed है. ओके, सरफेस एरिया. अब ऐसा बोला नहीं है कर्व सरफेस या टोटल सरफेस, तो जब नहीं बोलते ना मीन्स अंडरस्टैंड इट इज टोटल सरफेस एरिया. अगर नहीं बोला है तो टोटल सरफेस एरिया. ओके, तो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? मतलब अगर इस फिगर को आपको कलर करना है तो क्या कलर करेंगे? ये वाला पार्ट कलर होगा कर्व्ड पार्ट, ये बेस कलर होगा, ठीक है. ये टॉप में ये तो कैविटी है यहाँ पे, तो ठीक है, तो ये वाला पार्ट कलर होगा, दिस पार्ट विल गेट कलर्ड. कैन यू इमेजिन? ओके, एंड इस कैविटी है यहाँ पे, तो इस कैविटी के अंदर भी वो भी सरफेस एरिया ही है इसका सॉलिड का. सो इस कैविटी के अंदर भी ये जो पार्ट है ये, दिस पार्ट विल गेट कलर्ड. ओके, सी वापस बताता हूँ मैं. सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या क्या है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में? इस सिलेंडर को कलर करना पड़ेगा, ठीक है, ये सिलेंडर को कलर करना पड़ेगा. दैट मीन्स दिस सिलेंडर, ये कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर, दैट मीन्स CSA ऑफ सिलेंडर आएगा एक. ओके, प्लस सिलेंडर के बेस को कलर करना पड़ेगा. सो बेस ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया. ओके, प्लस ऊपर टॉप में सिर्फ ये रिंग आएगी, रिंग, ये रिंग आएगी, ठीक है. यहाँ पे मैं रिंग लिख देता हूँ. प्लस ये जो कैविटी बनाया है, होल बनाया है, समझो आप इसको ऊपर से देखोगे तो अगर आप इस पूरे चीज़ को कलर कर रहे हो तो ये ऊपर से जो अंदर का पार्ट दिख रहा है वो भी कलर होना चाहिए. मतलब ये जो कैविटी बनी है यहाँ से, इस कैविटी के अंदर भी कलर होना चाहिए पूरा, इस कैविटी के पार्ट में भी पूरा कलर होना चाहिए. ओके, बिकॉज दैट इज ऑल्सो सरफेस एरिया ही बन गया वो भी, बिकॉज वो एक्सपोज्ड है बाहर. ओके, सो ये कैविटी का अंदर का पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द कोन इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. करेक्ट, बिकॉज ये तो खुला है यहाँ से, तो बेस तो नहीं है, बट ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ना कोन का. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और CSA ऑफ कोन. इन सबको ऐड करेंगे तो आई विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. ओके, CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 pi RH, बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर. ओके, रिंग क्या होता है? रिंग, ये रिंग आपने पहले फाइंड किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में. सी, अगर एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है और आपको इसका एरिया चाहिए,
सो कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, दैट इज रिंग. ओके, so that will be area of big circle minus area of small circle. Okay, plus CSA of cone is pi r l. Okay, पहले देख लेते हैं कि वी हैव द रिक्वायर्ड डेटा. सिलेंडर का रेडियस है हमारे पास, यस. सिलेंडर का हाइट भी है, ओके. कोन का स्लांट हाइट है हमारे पास, नो वी डोंट हैव द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, विल हैव टू फाइंड इट हियर. सो स्लांट हाइट फाइंड कर लेते हैं ऑफ कोन. स्लांट हाइट ऑफ कोन कैसे फाइंड करेंगे? एल स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एल स्क्वायर इक्वल्स हाइट ऑफ कोन इज 12 एंड रेडियस इज 3.5. इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियस सम में हमने ये सेम नंबर से डील किया था, 144 प्लस 112.25. सो जो मिला था 156.25, जिसका आंसर हमें आया था 12.5. ओके, सो लेंथ इज स्लांट हाइट इज 12.5. नाउ लेट्स सब्सटीट्यूट द वैल्यूज हियर. ये पूरा ढूंढते हैं, ठीक है. सो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच. क्या कर लो, टेक पाई कॉमन फ्रॉम एवरीथिंग. ओके, टेक पाई कॉमन फ्रॉम एवरीथिंग. सो पाई कॉमन लेंगे, 2 आर एच. सो 2 इंटू सिलेंडर का रेडियस इज 7 एंड सिलेंडर की हाइट इज 20 प्लस पाई आर स्क्वायर. ये किसका पाई आर स्क्वायर था? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ओके, ये सिलेंडर का, तो यहाँ पे रेडियस भी सिलेंडर का आएगा. रिमेंबर ये बेस एरिया सिलेंडर का है, जहाँ पे सिलेंडर की चीज़ है वहाँ पे सिलेंडर का रेडियस लेना पड़ेगा. ओके, सो पाई आर स्क्वायर, पाई तो कॉमन हो गया, आर स्क्वायर दैट मीन्स 7 स्क्वायर प्लस. नाउ ये क्या था? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ये जो बड़ा आर है दैट इज़ द रेडियस ऑफ दिस बड़ा सर्कल मीन्स द सिलेंडर, एंड दिस छोटा आर इज रेडियस ऑफ द कोन. करेक्ट. सी यहाँ पे ये जो बड़ा सर्कल है दैट इज़ द सिलेंडर का पार्ट एंड छोटा सर्कल इज कोन का पार्ट. सो बड़ा सर्कल का रेडियस होगा जो सिलेंडर का रेडियस है, एंड छोटे सर्कल का रेडियस होगा जो कोन का रेडियस है. ओके, सो पाई तो कॉमन आ गया यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर. ओके, प्लस पाई कॉमन आर इंटू एल. कोन का रेडियस इज 3.5 इंटू कोन का स्लांट हाइट इज 12.5. ओके, अब ये मैं फटाफट कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको. टेक पाई एज 22/7. दिस 14 इंटू 20 विल गिव यू 280 प्लस दिस इज 49 प्लस 49 माइनस 12.25 प्लस 3.5 इंटू 12.5 इज 43.75. Now when you add this 280, 49, 49, 43.75, you will get 421.75 minus 12.25. When we subtract this, we will get 409.5 into there is 22 divided by 7. So when you cancel this, when you multiply and divide by 7, the final answer will be 1287. This is the surface area, so centimeter square. Okay, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ये, कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स था, ये समझना भी कॉम्प्लेक्स था. ठीक है, समझ से आया नहीं अब तक एग्जाम में, बट जस्ट फॉर द फ्लेवर ऑफ इट. Pause the video, copy the sum. I'll start with the next one. Now the few sums are easy.
A cone of radius 15 centimeter and height 7.5 centimeter. Cone of radius 15 centimeter and height 7.5 centimeter is filled with water. Okay, so this cone is filled with water. एक बड़ा सा cone है, उसको पानी से fill करती है. ठीक है, मैंने cube is placed inside the cone. एक cube है. Okay, this is placed inside the cone. Okay, cube की side दिया है क्या? नो, इट इज़ नॉट गिवन. सो क्यूब की साइड हमें फाइंड करनी है. ओके, और होता क्या है, व्हेन द क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड द कोन, क्या हो रहा है, 1/3 नो 1/33 1/33 पार्ट ऑफ वाटर ओवरफ्लोज. कितना पानी ओवरफ्लो हुआ, 1/33 ऑफ द टोटल वॉल्यूम. ओके, तो ये जब अंदर गया, ये पूरा भरा हुआ था, ये जब अंदर गया तो 1/33 पार्ट, जैसे हम 1/4 बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं, वैसे 1/33 पार्ट वाटर ओवरफ्लो. सो हमें पता है ये ओवरफ्लो क्यों हुआ पानी, बिकॉज उतनी जगह इस क्यूब ने ले ली. जितनी जगह इस क्यूब ने ली उतना ही पानी ओवरफ्लो हुआ. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन is equals to volume of cube. करेक्ट. वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन कैसे मिलेगा, जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1/33. टोटल वॉल्यूम इज πr²h/3, उसका 1/33 ये ओवरफ्लोन है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब. ओके, बस सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो, हो गया काम. पाई कुछ बोला नहीं है, मीन्स इट इज़ 22/7. रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 15 इंटू 15 इंटू हाइट इज 17.5/3 इक्वल्स ए क्यूब. ओके, डू दिस कैलकुलेशन, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक क्यूब आएगा. ओके, फिर दोनों साइड क्यूब रूट लेना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द आंसर. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस. पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस. Okay, complete this sum. Next, question number 13. I'll just give you the theme of the question. Okay, बाकी आप कर लोगे, I know that. 13th one is simple. A solid metallic cone. अच्छा, 13th one we have already done. I'm sorry. 13th one is already done. 14th one. Again, I'll just explain you the sum. Sum is very easy. Volume of a cone is same as that of a cylinder. Question में बोल दिया है volume of cone is same as that of a cylinder. Volume of cylinder. अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है मीन्स πr²/3 इक्वल्स πr²h. ओके, रेडियस हाइट डिफरेंट है दोनों का. ठीक है, क्या रेडियस हाइट है, सिलेंडर हुज हाइट इज 9 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज 40. सो सिलेंडर की हाइट है 9 सेंटीमीटर and diameter is 40, that means radius will be 20. Okay, always make a habit of writing given in the beginning of the sum, तो कुछ गलती नहीं होगी उससे. Okay, find the radius of the base of the cone, मतलब कोन का रेडियस फाइंड करना है, whose height is 108 सेंटीमीटर. ओके, सो कोन की हाइट है 108 सेंटीमीटर. लेट्स पुट द वैल्यूज. पाई तो कैंसिल हो जाएगा. कोन का रेडियस वी डोंट नो. कोन की हाइट 108/3 इक्वल्स सिलेंडर का रेडियस 20 इंटू 20 एंड हाइट इज 9. ओके, 3 1s 3 3s 3 6. सो आर स्क्वायर इज 20 इंटू 20 इंटू 9/36. ओके, सो 20 इंटू 20 इज 400 इंटू 9/36. आर स्क्वायर रूट लेंगे इसका, ये तीनों स्क्वायर्स है तो स्क्वायर रूट लेना आसान होगा. क्या होगा, 400 का स्क्वायर रूट 20, 9 का स्क्वायर रूट 3, 36 का स्क्वायर रूट 6. 1s 2 2s 2 1s 2 10s. सो रेडियस इज 10. अरे ये तो सॉल्व ही हो गया सम, एक्चुअली मुझे छोड़ना था. ओके, नो प्रॉब्लम. Understood? These type of sums will come in exam.
दीज टाइप ऑफ सम्स विल कम इन एग्जाम. ओके, फिर मल्टीपल फिगर्स आएंगे. ठीक है, ज्वाइन भी कर सकते हैं दोनों फिगर्स को. Done. Writing the formula is very important. Writing both the formulas is very important. Next. Question number 15. Very good sum. A cylindrical pillar 4 meters high is surmounted by a cone of height 40 centimeters. So there is a cylindrical pillar surmounted by a cone. Cylindrical pillar surmounted by a cone मतलब सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा है. सरमाउंट मीन्स उसके ऊपर रखना, उसके सर पे रखना. ठीक है, सरमाउंटेड, उसके ऊपर एक कोन रखा है. ऐसा सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा है. ओके, सिलेंडर की हाइट दी है 4 मीटर्स. सिलेंडर की हाइट इज 4 मीटर्स, दैट मीन्स 400 सेंटीमीटर्स. ओके, एंड हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर. सो कोन की हाइट, स्लांट हाइट नहीं, नॉर्मल हाइट. स्लांट हाइट के लिए स्लांट हाइट वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, हाइट इज 40 सेंटीमीटर एंड बोथ ऑफ डायामीटर्स 60 सेंटीमीटर. मतलब इसका डायामीटर और इसका डायामीटर सेम है, इसलिए मैंने फिगर ऐसा बनाया है. अगर दोनों का डायामीटर अलग होता तो फिगर कुछ ऐसे बनता. समझो, अगर कोन छोटा होता तो कोन ऐसे बनता. ओके, या अगर कोन बड़ा होता तो कुछ ऐसे बनता. ओके, बट दोनों का डायामीटर सेम है, मीन्स दोनों का रेडियस सेम है. सो इसीलिए दे आर ओवरलैपिंग, एकदम एग्जैक्टली ऊपर नीचे है उनके. ठीक है, ये पार्ट उनका कोइंसाइडिंग है. Sorry. So the diameter is 60 centimeter. Okay, diameter is 60 means radius will be 30. Okay, दोनों का radius. Now what do we have to find? Find the cost of painting the pillar at 10 rupees per meter square. So rate क्या है? 10 rupees per meter square. Okay, पेंट करना है पिलर को. पिलर को पेंट करना है मीन्स, ध्यान से सुनना भी एकदम, इस पिलर को कलर करना है मुझे, तो मैं इसका क्या फाइंड करूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया. सी, ये पिलर का बॉटम है. सो ये तो बॉटम तो ज़मीन में जाएगा. ठीक है, तो ये तो पेंट नहीं होगा नीचे से. दिस पार्ट विल गेट पेंटेड, कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, फिर ये ऊपर क्या है, कोन है, कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट होगा. ठीक है, ये जो कोन का बेस है या जो पिलर का टॉप है, ओके, ये कोन का जो बेस है और पिलर का टॉप है, ये जो सर्कल है ये पिलर के अंदर है. सर्कल करेक्ट, ये जो सर्कल है ये वाला पार्ट, दिस इज इनसाइड द पिलर, जो हमें दिख ही नहीं रहा. ओके, समझो अगर ये एक सिलेंडर है, ओके, और उसके ऊपर ये कोन रखा है ऐसा, तो जो ये इसका कॉमन पार्ट होता है अंदर का, ये तो पिलर के अंदर चले जाता है, तो वो भी कलर नहीं होगा. ओके, ये वाला पार्ट भी कलर नहीं होता, दिस विल नॉट गेट कलर्ड. करेक्ट. सो जो बाहर दिखता है दैट इज दिस कर्व्ड पार्ट ऑफ कोन एंड कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, ये दोनों चीज़ कलर होगी. दैट मीन्स एरिया टू बी कलर्ड इज CSA of cone plus CSA of cylinder. Okay, so CSA of cone is pi RL, CSA of cylinder is 2 pi RH. ओके, सबसे पहले L ढूंढना पड़ेगा. व्हाट इज L? L स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. सो L स्क्वायर इज हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 40 स्क्वायर प्लस रेडियस इज 30 स्क्वायर. सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट लेंथ एज 50, 3 4 5 होता है. सो लेंथ मिलेगा, सॉरी स्लांट हाइट मिलेगा 50 सेंटीमीटर. ओके, दे हैव टोल्ड टू टेक पाई एज 3.14. ओके, तो कॉमन ले लो पाई पहले. रेडियस ऑफ द कोन इज, रेडियस बोथ सेम है, 30 इंटू स्लांट हाइट इज 50 प्लस यहाँ पे पाई कॉमन चला गया, 2 इंटू
radius is again 30 and height of the cylinder is 400 ले रहे, 4 नहीं, because everything is in centimeters. 400. Okay, pi is 22/7, 5 3s are 1500 plus 60 into, sorry, so this is 24,000. सॉरी, द पाई हमें 3.14 लेना था. दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि क्या गलत हो रहा है. टू दिस कॉपी द सम. when you solve this 3.14 into, add this 2550, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 80,070 एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, हमें जो रेट दिया है दैट इज इन मीटर स्क्वायर. सो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा. ओके, एंड हाउ टू फाइंड द कॉस्ट? कॉस्ट इज रेट इंटू एरिया. सो रेट इज 10 रुपीज़ इंटू एरिया इज 80070, बट इन सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 10,000. ओके, सो दैट इट विल बिकम मीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस 0 विल गेट कैंसल्ड. 2 नंबर्स के बाद पॉइंट. सो आंसर इज 80.07 रुपीज़. सी द वे आई एम डूइंग द कैलकुलेशन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. मैंने यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया तो कैलकुलेशन बच गया, उससे सिंपल हो गया. फिर इससे पाई से मल्टीप्लाई कर दिया. सी ये 3.14 है, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है तो ये 2 ज़ीरोज़ कट करोगे. सो दिस 3.14 विल बिकम 314. 2 ज़ीरो से ये 314 हो जाएगा. कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन में. Okay, question number 16, cancel it, not important. Now we'll do question number 17, 18 and क्वेश्चन नंबर 20. बाकी जो सम्स है दे आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सम्स, लाइक फोल्डिंग पेपर वगैरह. थोड़े अलग टाइप के सम्स है जो एग्ज़ाम में नहीं आते. सो यू कैन डू इट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. जिनको करना है, जिनका बाकी सब हो चुका है, दे कैन डू इट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट सम्स है दैट आई एम डूइंग हियर. लेट्स डू द 17, 18 फर्स्ट. वेरी सिंपल सम्स, यू कैन इवन ट्राई इट ऑन योर ओन. मैं आपको सिर्फ इसके इक्वेशन लिख के देता हूँ, ठीक है. कंपैरिजन. सी अ सिलेंड्रिकल जग ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. सो जग ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर is filled with orange juice. It is then poured into small conical cups. ये सिलेंड्रिकल जग था, ठीक है. इस सिलेंड्रिकल जग से पोर किया है स्मॉल कॉनिकल कप्स में. सो कॉनिकल कप्स में इस जग में से ऑरेंज जूस पोर किया है.
ओके, फाइंड द नंबर ऑफ कप्स, हमें कप्स नहीं पता कितने हैं, ठीक है। सो व्हाट विल आई डू, इस जग से कप्स में पोर किया है, नंबर ऑफ कप्स नहीं पता। इस कप्स का इंफॉर्मेशन क्या दिया है, दे आर स्मॉल कॉनिकल कप्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ जग इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ कप इंटू एन, कितने नंबर ऑफ कप्स है, ठीक है। जग का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बिकॉज इट इज सिलेंडर, कप इज अ कोन, सो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 इंटू एन। इसका रेडियस हाइट यहाँ पुट करो, इसका रेडियस हाइट यहाँ पुट करो, सॉल्व द सम, फाइंड एन, पाई पाई विल गेट कैंसल्ड, सिंपल। Question number 18. A joker cap in the form of a right circular cone. See, right circular cone मतलब कोन ही होता है, ठीक है, उसका फैंसी नाम है खाली है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन मतलब कोन। जोकर कैप बनाना है, ठीक है, ये है जोकर कैप ऐसा, ओके। याद रखना जोकर कैप नीचे से खुला होता है, नीचे से खुला होगा तभी तो हम उसे पहन सकेंगे, ठीक है। खाली ये वाला पार्ट में पेपर होता है, ओके, नीचे से इट इज ओपन, सो मीन्स फ्लैट पार्ट होता ही नहीं है, देयर इज ओनली कर्व सरफेस एरिया हियर, ओके। सो जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, ये कोन के डायमेंशंस है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, तो ऐसी 10 कैप्स बनानी है, तो कितना पेपर चाहिए, कितना शीट चाहिए। एरिया ऑफ वन कैप, एरिया ऑफ शीट फॉर वन कैप इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो उतना ही पेपर चाहिए मुझे, करेक्ट। सो कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, ओके। सो रेडियस पता है, हाइट पता है, वी डोंट नो द स्लांट हाइट, सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, so 64 plus 36 will become 100, so L is 10, L मिल गया 10। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, पाई दे हैव टोल्ड टू टेक 3.14, ओके, रेडियस इज 6, L is 10, okay, when you multiply this you will get 188.4 as the area, ओके। बट ये एक कैप का था, अब 10 कैप्स के लिए क्या होगा, 10 कैप्स के लिए 188.4 इंटू 10, so area will be 1884 centimeter square. This is your answer. Copy it.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वैसे 19th क्वेश्चन भी नहीं आएगा बट ऐसे ही डिस्कस कर लेते, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 19th वन। ये पीस ऑफ पेपर से बताना पड़ेगा मुझे आपको। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड्स, सो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13, हाइपोटेन्यूज 13, समझो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, ओके, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, is revolve about the side 12 centimeter, find the volume of the solid so obtained। मतलब इसमें क्या करना है पता है, देखो उन्होंने बोला है कि ये एक ट्राइंगल है, यू कैन इमेजिन ना, एक ट्राइंगल है, दिख रहा है अच्छे से, इसको ड्रॉ करूँ ऐसे, दिस इज 12, दिस इज 5, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है ऐसा, ओके। अब बोला है इस ट्राइंगल को 12 सेंटीमीटर वाली साइड, ये 12 सेंटीमीटर वाली साइड है, उस 12 सेंटीमीटर वाली साइड से ऐसे रिवॉल्व किया है ट्राइंगल को, ओके, मीन्स ये जो ट्राइंगल है ना ऐसे, ओके, इस ट्राइंगल को सीधा रखा, ओके, यहाँ से पॉइंट मार्क किया, एंड दिस ट्राइंगल इज रिवॉल्व लाइक दिस, इसको ऐसे घुमाया पूरा, इस ट्राइंगल को ऐसे घुमाया, ओके, जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो एक ऐसे सर्कल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसा, ये इसको घुमाया ऐसा, ओके, इस घुमाने से एक ये सर्कल फॉर्म हो गया, ओके, और ये पूरा दिस फिगर, इस सर्कल से अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, ओके, ये इसने कितना एरिया कवर किया इस ट्राइंगल ने, जब ये ऐसा घुमा ट्राइंगल पूरा, इमेजिन ये जो ट्राइंगल है ये ऐसा पूरा घुमा है, ओके, सो इस ट्राइंगल जब ये घुमा है ऐसा, तो इसने, ये बेस था ऐसा, तो जब ये ट्राइंगल ऐसा था कुछ, ठीक है, जब ये ट्राइंगल मूव हुआ तो इसने कितना एरिया कवर किया, इसने पूरा इतना एरिया कवर कर दिया, ओके, मतलब इस ट्राइंगल के घूमने से, इस ट्राइंगल के घूमने से ऐसा पूरा, अगर हमने देखा कि इसने कितना वॉल्यूम कवर किया है, तो इसने एक ऐसे कोन बना दिया बेसिकली इसके ऊपर, ओके, ये ट्राइंगल ने ऐसा, जस्ट इमेजिन लाइक दिस ट्राइंगल ने रिवॉल्व किया एंड इट मेड अ कोन, ओके, सो अगर आपने इस ट्राइंगल को इमेजिन किया ऐसे, सो 12 सेंटीमीटर साइड से रिवॉल्व किया, मतलब 12 सेंटीमीटर साइड बीच में रहेगी और फिर ट्राइंगल को ऐसे रिवॉल्व किया है, ओके, दिस ट्राइंगल इज रिवॉल्व लाइक दिस, सो अगर 12 सेंटीमीटर साइड बीच में है, मीन्स जो कोन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये जो कोन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, उस कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर होगी, ओके, और उस कोन का रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, करेक्ट, बिकॉज ये ट्राइंगल को बीच में रखा था और घुमाया था ऐसे। सी दिस वीडियो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, जब इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम घुमाएंगे तो ये कोन जैसे कितना एरिया कवर कर रहा है, इट बिकम्स अ कोन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर। जब ट्राइंगल को मूव करते हैं तो इट फॉर्म्स अ कोन। यहाँ पे भी हमने इस ट्राइंगल को मूव किया ऐसे, तो मूव करने पे इसने जितना एरिया कवर किया है दैट फॉर्म्स इनटू अ कोन। सो उस कोन की हाइट होगा 12 एंड बेस होगा, सॉरी रेडियस होगा 5। सो योर हाइट इज 12, रेडियस इज 5, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, जस्ट पुट दिस वैल्यूज हियर, आंसर आ जाएगा। लास्ट विल डू क्वेश्चन नंबर 20। 21 22 इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 20 फिर भी ठीक है, डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा बट वी कैन डू इट। द बेस एरिया ऑफ अ कोन इज 1386,
centimeter square. Base area of cone. Base area of cone. What is base area? 1386. Base area मतलब pi r square. Okay, pi r square is 1386. Now if pi r square is 1386, pi we will take 22 upon 7. Okay, r square is 1386. Solve this. I'll solve it here. R square is 1386 into 7 upon 22. When you solve this, you will get R as 21. स्क्वायर रूट लेने के बाद. Okay, and its volume is 12936. So the volume is 12936. Volume क्या होता है? Pi r square h upon 3. You're talking about the cone. Okay, and that is 12936. Radius we know now. Okay, so 22 upon 7 into radius is 21 upon 3 into height is we don't know. Do this calculation. Twenty-two, 21. Do the cancellations here. 11 twos are, 11 ones are, 83, 7s are, 6 are, 2 5s are, 8, 21 ones are, 21 twos are, 8s are. Height is 28 सेंटीमीटर्स. पहले बेस एरिया दिया था, उससे हमने रेडियस फाइंड किया, फिर वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम के फॉर्मूला से रेडियस यूज़ करके हाइट फाइंड किया. Now they want you to find in the end they want you to find the curved surface area of the cone. So CSA फाइंड करना in the end. Okay, तो CSA के लिए पाई आर एल होना चाहिए. ओके, पाई आर एल, तो पहले तो एल ढूंढना पड़ेगा. एल इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, दैट इज 784 प्लस 441, स्क्वायर रूट ऑफ 1225. This is 35. L becomes 35. If L is 35, CSA is pi RL, that is 22 upon 7 into radius 21 into 35. 7 ones are, 7 threes are, 66 into 35 is your answer. Copy the sum from here, then here. That's it with the 17B exercise. We have completed cylinders and cone.
both are done now from Frank. Okay, that's it for today. Thank you.